Good morning, students. In business study class, we have started international sources of finance, and we have completed ADRs and GDRs. ADRs are the American Depository Receipts full form, and GDR are the Globally Depository Receipts. It means we can raise the funds not from our own country, we can raise the funds from outside the country in the form of ADRs or GDRs. That means global depository receipts. There is no restrictions to raise the funds from any country, but the condition is that our company is listed in a New York or a Europe Stock Exchange. Clear बच्चे? And IDRs. IDRs are Indian depository receipts when foreign company raise the funds from the India. Raised fund from India. क्लियर कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करें. क्लियर. अब फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में फंड्स रेज कर रही है, इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स कौन होंगे? इंडियन इन्वेस्टर्स जस्ट इन्वेस्ट देयर मनी इन अ फॉरेन कंपनी, और वही कंपनी फंड्स रेज कर सकती है जिनका नाम कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. अब सिमिलरली एडीआर्स और जीडीआर्स की तरह ये भी क्या है? इजीली कन्वर्ट इनटू अ शेयर्स. क्लियर. और इसके फीचर्स है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड होंगे. ठीक है. और 1 शेयर आइडियाज इज इक्वल टू 10 shares. ठीक है. is but the shareholders of IDRs, foreign Indian investors has no right to participate in the companies, कि उनको एज ए मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन द कंपनी. एंड दीज आर द rupee denominators, and there are some other features. These are issued by the foreign company. Clear. And then they are listed in any Indian stock exchange. 1 IDR is equal to 10 shares, and they are also entitled to get a dividend similarly to the equity shares holders. ठीक है. Then but they have no right to vote, no participate in management, and the holders of IDRs can get converted into shares but not before 1 year from the date of issue. IDR को भी क्या है? शेयर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर बच्चे? सो दीज आर द फीचर्स. और इसका प्रोसीजर क्या होएगा? जैसे कि हमने ADR में किया था कि फॉरेन कंपनी गिविंग इट टू द डिस्ट्रिक्ट कस्टडी बैंक, एंड देन ओवरसीज बैंक्स, एंड देन फॉरेन इन्वेस्टर्स आर देयर. इंडियन कंपनी, DCB, OCB, एंड देन फॉरेन इन्वेस्टर्स. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. फॉरेन कंपनी issuing a shares to overseas custodian bank, then Indian custodian bank, and then Indian investors. ठीक है. ये अपनी करेंसी में इशू करेंगे, ये इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यहाँ से इंडियन इन्वेस्टर्स क्या है? परचेज कर सकते हैं फॉरेन कंपनी के शेयर्स. तो क्लियर हो गया बच्चे आपको डिफरेंस? ADRs, GDRs and IDRs are the type of the shares. They are raised from the international market. क्लियर बच्चे? और वही कंपनी शेयर्स रेज कर सकती है जिनका क्या नाम है? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होएगा? लिस्टेड होएगा. ठीक है बच्चे? तो ये आपका टॉपिक, हमारा जो ओन फंड टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया. दैट इज शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस. Retained earning is also the parts of owners fund because it is the undistributed profit that is the right of the shareholders, इसलिए हम इसको owners fund कहते हैं. और international source is also the part of the shares, and that is ADRs and GDRs. And next topic we are going to start, that is a borrowed fund. Borrowed fund we already discussed its difference. ओन फंड और borrowed फंड में क्या डिफरेंस होते हैं on the various parameters. That means कि you have to pay interest,
you have to pay, you have to collateral as security, ठीक है. और you can borrow the fund long term as well as short term as refundable, कि जो बोरो फंड होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, वी हैव टू रिफंड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड. क्लियर. एंड फिक्स्ड बर्डन, दिस इज़ द फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी टू पे इट बैक. ठीक है बच्चे, तो ये बोरोड फंड हो गए. एंड इसके सोर्सेज हमने कौन कौन से किए थे? सोर्सेज आर डिबेंचर्स, देन public deposits, then loan from bank, any commercial banks or financial institutions, trade credit, that is the part of short term, and next is ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर मैं आपको एक बार डेफिनेशन के बता दूंगी इसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है बच्चे. और जितने भी सोर्सेज आपने सिर्फ उसके फीचर्स ही करने हैं, इवेल्यूएशंस, मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं करने. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है एज अ फिक्स टाइप ऑफ फिक्स्ड लोन. जैसे कि कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं एट दिस प्राइस. तो डिबेंचर्स क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें कि सारा मेंशन होता है कि कितनी अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितने टाइम के बाद इनकी मनी रिफ़ंड करनी है. और ये क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं. मोस्टली डिबेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं. इन केस सिक्योर्ड मीन्स इन केस कंपनी इज़ फेल टू जस्ट रीपे द मनी, एंड इन दैट केस डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी में सेल द एसेट एंड जस्ट पे द मनी बैक टू द डिबेंचर होल्डर. कि अगर कंपनी फेल हो जाती है या कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है तो जो सिक्योरिटी, जो एसेट एज ए कोलैटरल रखी हुई है उसको डिस्पोज ऑफ करके कंपनी उसके ड्यू कर सकती है, क्लियर कर सकती है. सो इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ द लोन दैट इज़ कंपनी taking from the debentures holders by issuing a acknowledgement or issuing a certificate that includes number of the debentures and with interest amount and with the specified time and when the money is paying back to the debenture holders. क्लियर बच्चे. और आगे एक वर्ड आएगा बॉन्ड. डिबेंचर्स और बॉन्ड क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें. इनिशियली क्या था? बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती थी, बट अब क्या है? सेमी गवर्नमेंट और अदर कंपनीज भी क्या है इसको इशू कर सकती हैं. और डिबेंचर्स क्या हैं? ऑलवेज में इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है. और बॉन्ड में क्या होता है? सेम टाइम डिस्काउंटेड बॉन्ड्स में कई बार क्या करते हैं? इंटरेस्ट प्री डिसाइड नहीं करते, प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट नहीं होता. ठीक है, ये डिफरेंस है. रेस्ट आर द सेम फीचर्स ऑफ बोथ डिबेंचर्स एज वेल एज बॉन्ड. क्लियर बच्चे. सो डिबेंचर्स इन योर बुक दैट इज़ गिवन अ पैराग्राफ. आपने इसके फीचर्स मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ. दैट इज़ it is a issued in the form of, it is issued by the company, it is issued by the company